हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द मुग़ल एम्पायर। हिस्ट्री का चैप्टर है। मुग़ल्स कौन थे? और उन्होंने अपना एम्पायर कैसे बनाया, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल कौन थे और उन्होंने अपना एम्पायर कैसे बनाया। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished with what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeded rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran and modern day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself taking a look at figure 2, which is somehow like a group photograph. सबसे बड़ी चीज़ कि मुग़ल एम्पायर क्या था, बोलते हैं कि जब मिडिल एजेस वाला टाइम चल रहा था, मिडिल एजेस हो गया कि ये 15-16 सेंचुरी से पहले और इस दौरान जो टाइम आया था, तो उस टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया का जो ये सब कॉन्टिनेंट था, तो तब ये जो आप अभी देखते हो पाकिस्तान वगैरह, ये सब तब अलग अलग नहीं था, ये सब एक ही होता था तब। तो बोलते हैं कि तब यहाँ पे रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे राजाज थे, तो वो अपना मतलब करते नहीं थे। किसी को लड़ाई होती थी, फिर उसको हराना पड़ता था राजा को, फिर जाके वो यहाँ पे राज कर पाते थे। लेकिन बोलते हैं जो मुग़ल्स थे, मुग़ल्स एक ऐसे थे जिन्होंने अपना जो बहुत अच्छे से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया, और यहाँ पे वो काफ़ी देर तक अपना दबदबा उन्होंने बना के रखा। उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया, बड़े बड़े मोनूमेंट्स बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी याद करे जाते हैं, जो मुग़ल्स ने ही बनाए हैं। जैसे कि रेड फोर्ट, जहाँ पे आज भी इंडियन फ्लैग लहराया जाता है जब 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है जब रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे, तो रेड फोर्ट पे ही जाया जाता है। तो बोलते हैं वो सब किसकी देन है? वो मुग़ल एम्पायर की ही देन है। अब बोल रहे हैं कि मुग़ल एम्पायर थे कौन? मुग़ल एम्पायर थे ये दो। अब जैसे कि हर एक एम्पायर का मतलब है खानदान। अब ये कौन से थे? बोलते जो इनकी मम्मी वाली साइड थे, वो कौन थे? वो थे चंगेज़ खान जो एक मंगोलिया का रूलर था, जिसने कहाँ कहाँ पे राज किया था? चाइना और सेंट्रल एशिया और चाइना पे उसने राज किया था। और उसके पापा की साइड कौन सी थी? तैमूर, जो ईरान, इराक और जो आज की डेट में तुर्की है, वहाँ पे वो राज करता था। However, the Mughals did not like to be called मुग़ल और मंगोल। लेकिन इनको मुग़ल्स को ना मुग़ल या फिर मंगोल कहना नहीं पसंद था। This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry.
not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. अब इनको ना मुगल्स कहना क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि चंगेज़ खान की मेमोरी की वजह से, क्योंकि चंगेज़ खान वॉज एसोसिएटेड विद द, तो बोल रहे हैं कि चंगेज़ खान की मेमोरी एसोसिएटेड थी मैसेकर। मैसेकर हो गया कि नरसंहार, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों का मारे जाना। बोला मंगोल के बहुत सारे लोग मारे गए थे जब ये लड़ाई झगड़े होते थे, इस वजह से उनको मंगोल बोलना ज़्यादा पसंद नहीं था। उनको ज़्यादा तैमूर की साइड से, जो तैमूर उनको अपने जो फोर फादर्स थे तैमूर वाले, तैमूर का जो अपने बाप वाली साइड से उनको जो डायनास्टी थी उसका ज़्यादा घमंड था। क्यों? क्योंकि जो तैमूर था वो एक बहुत बड़ा बलवान, मतलब कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था जिसने दिल्ली को 1300 यानी कि 1400 सेंचुरी में ही कैप्चर कर लिया था। यानी कि उसने सब राजाओं को हरा के दिल्ली पे फतेह हासिल कर ली थी। इसीलिए जब भी कोई मुग़ल राजा बनता था, जब भी मुग़ल डायनास्टी में कोई राजा बनता था तो वो क्या करता था, तैमूर की एक फ़ोटो थी और उसके साथ बैठ के वो फ़ोटो खिंचवाते थे। जैसे कि इसमें पेंटिंग में अगर आप देखोगे, देखो जैसे इसके साथ ये बैठे हुए राजे हैं, इसी तरीके से वो उसकी फ़ोटो बनवाते थे अपनी। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर 1526 सक्सीडेड टू थ्रोन ऑफ फेरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। सबसे पहले जो इनके खानदान से आया था यहाँ पे बाबर आया था मुग़ल, जिसने कि मुग़ल एम्परर, जिसने दिल्ली के जो दिल्ली का जो तख्त था वो हासिल कर लिया था कब, 15th सेंचुरी में ही, 16th सेंचुरी में ही। When he was only 4, जबकि वो सिर्फ 12 साल का ही था तभी उसने हरा दिया था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। उसको अपना घर छोड़ के आना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूसरे मंगोल, जो उनके कॉम्पिटिटर मंगोलिया थे, उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया था। इनको आपस में भी लड़ाई होती थी, जैसे एक मुग़ल राजा दूसरे मुग़ल राजा के साथ लड़ाई करता था, वैसे ही एक मंगोलिया राजा भी दूसरे मंगोलिया राजा के साथ लड़ाई करता था। किसके लिए? तख्त पाने के लिए। The Uzbeks, after years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi. इसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया at पानीपत and captured Delhi and Agra। और दिल्ली और आगरा पे इसने कब्जा कर लिया। किसने? बाबर ने। Some of the major campaigns of the Mughals, study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms, the Sikhs, and Mewar and Marwar. How was Humayun's relationship with Savet Irfan different from Akbar? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb and hostiles in the Deccan? अब ये वही बता रहा है कि मुग़ल जो मिलिट्री कैंपेन्स थी वो कैसे हुई, और उसके बाद अब हम इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे कि मुग़ल्स को अफ़गान के साथ क्यों लड़ाई थी, सिखों के साथ क्यों लड़ाई थी, मुग़ल्स को मेवाड़ियों के साथ क्यों लड़ाई थी, जो राजपूत होते थे उनके साथ क्यों लड़ाई होती थी। यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट टेबल दिया हुआ है मुग़ल एम्परर्स के बारे में। सबसे पहले बाबर के बारे में दिया हुआ है। बाबर 1526 में डिफीट किया उसने, किसको? राजे को हराया, इब्राहिम लोदी, जो कि एक अफ़गान सपोर्टर था, उसको पानीपत में हराया। फिर 1527 में उसने राणा सांगा, राजपूत रूलर्स एंड एलाइज एट खानुआ में हराया। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी में, और उसने आगरा और दिल्ली पे कंट्रोल पा लिया जब अपने मरने से पहले। फिर उसका बेटा पैदा हुआ हिमायूं ने 1530 से लेके 1556 तक, उसने 1556 तक अपना राज किया। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल टू हिज फादर। हिज ब्रदर्स वर each given a province. The ambitions of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan competitors. अब लेकिन बाबर की मर्जी थी कि जो हुमायूं है वो अपने ब्रदर के साथ इक्वली अपना जो राज्य है, ये जो उसकी मतलब सारे ये जो तख्त है वो उसको वो मतलब आधा एरिया को डिवाइड कर लें, जो भी उनके पास चीज़ें हैं। लेकिन जो मिर्ज़ा कामरान था वो
वो क्या करता था, वो ज़्यादा एम्बिशियस था और उसकी वजह से ही इन दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े हो गए और जो दुश्मन राजे थे उनको इन पे ज़्यादा पकड़ मजबूत बन गई। जैसे कि शेर खान कामयाब हो गया हुमायूं को हराने में 1539 चौसा में और कनौज में, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। और उसके बाद हुमायूं कहाँ भाग गया, ईरान भाग गया। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ेद शाह, ही रिकैप्चर दिल्ली। उधर से उसको मदद मिली सफ़ेद शाह की और उसने फिर से एक बारी हमला किया और 1555 में उसने फिर से दिल्ली को कब्जा कर लिया और उसके अगले साल ही वो मर गया। उसके बाद हुमायूं का बेटा पैदा हुआ अकबर। अकबर वॉज 13 years old when he became emperor। सिर्फ 13 साल की उम्र में जो अकबर था वो क्या बन गया, बादशाह बन गया। His reign can be divided into 3 periods। अब वो 3 पीरियड्स में उसकी रेन को, उसके जो भी उसने राज किया उसको हम 3 रेन्स में डिवाइड करते हैं। Akbar became independent of the regained Bairam Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, the Sisodia capital of Chittor was seized, and in 1569, Ranthambore। बोला जो अकबर था उसने छोटी उम्र में ही ये सब लड़ाई झगड़े, मतलब ये जो जंग करना शुरू कर दिए और अपने दुश्मनों पे कब्जा पाने लगा। In 1568 the Sisodia capital of चित्तौर was seized। चित्तौर को उसने मतलब हथिया लिया। Military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east in Bihar, Bengal and Orissa। These campaigns were complicated by the revolt in support of Mirza Hakim। लेकिन इसको मिर्ज़ा हकीम जो था वो इसको मतलब कि रिवोल्ट करता था, तो उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स आती थी। जो अपने जो भी ये जंग के तरीके से जो भी ये एरियाज़ को कवर करना चाहता होता है उसमें इसको प्रॉब्लम्स आती थी। एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। Gandhar was seized from the Safavids। Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim। Campaigns in the Deccan started and Barsar, Khandesh and parts of Ahmednagar। Last of these reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir। लेकिन उसके बाद जो अकबर था वो कमज़ोर पड़ गया, किसकी वजह से, प्रिंस सलीम जो कि फ्यूचर में जाके जहांगीर बना उसकी वजह से। आज हम इतना ही पढ़ते हैं यहाँ तक, कल हम पढ़ेंगे बाकी जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में।